the theory of different theories of supply, elasticity of supply. Likewise, there is another lecture on the theories about the cost and different definitions and different uh, important points about the how the cost is going to decided in the future for any commodity. It will discuss in the next slide. But today I will discuss about the supply regarding topic. Today I will cover the theories of supply. Basically, what is supply? It is actually what is supply? It is the various amount of commodities which the producers are willing and able to make available. Sorry, various amount of commodity which the producers are willing and able to make available for sale at various price during a given time. So in this definition, there are four keywords for this definition. First, first one is the willingness about to sell anything. Willingness about to sell anything. Ability to sell anything. Then at different price at various price level and at a particular given time period. So this fourth key component of this definitions. And in the next slide, you will understand more about this. Actually, what is there must be a clear cut difference what is stock and what is supply. In the next slide, it is a stock. What is stock? Stock is the amount of output that exists in the market. It can be anything. It can be in any amount which is exist in the market in the storehouse. But if willingness and ability to sell out that stock is not with the that sellers, that stock is stock, not the supply. When it will be supply, when any seller become ready, means what it means by ready, he has ability and he has willingness to sell that amount, that part of their stock in the market at given price at given period of time. Okay, depending on the demand for a for a command, a stock is converted into supply. How the so depend upon the डिमांड डिमांड के बेसिस पे ही ये स्टॉक को सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं. स्टॉक क्या होता है? एक मतलब कोई किसी भी अमाउंट में यदि कोई कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं. लेकिन सप्लाई तभी बोलेंगे जबकि जो सेलर है उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, विलिंगनेस, और विलिंगनेस के साथ क्या होना चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं उसको हमको सेल आउट करना है. यदि हमारे पास फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास मान लो कि 100 लीटर के आसपास दूध है, यदि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हमारी विलिंगनेस नहीं है, यदि वहां पे यदि हमारी विलिंगनेस नहीं है वहां पर उसको सेल आउट करने की, तो वो स्टॉक में काउंट होगा. लेकिन यदि 100 लीटर मिल्क है और उसमें से यदि हम 50 लीटर मिल्क को सेल आउट करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस तो होनी चाहिए. और ये विलिंगनेस और एबिलिटी कैसे आती है? जब हम ये देखते हैं, जब भी कोई सेलर ये देखता है मार्केट में कि देयर इज प्रॉफिट इन सेलिंग दैट अमाउंट ऑफ एनी कमोडिटी, देन इट विल कन्वर्ट इनटू सप्लाई. सब तो जब सेलर को ये लगता है कि यदि इस प्राइस पे यदि हम उस दूध को सेल आउट करते हैं, इस फ्रैक्शन ऑफ दूध को या होल मिल्क को भी वो सेल आउट कर सकता है, उसे लगता है कि वो प्रॉफिटेबल है, तभी उसको सेल आउट करता है. तो जितना पोर्शन वो सेल आउट करने के लिए रेडी होता है, विलिंग होता है, उतने ही पोर्शन को हम सप्लाई करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई जो होता है वो स्टॉक का पार्ट होता है. और ये सप्लाई जो तो होलसेल पूरा स्टॉक भी हो सकता है, यदि पूरा का पूरा स्टॉक बेचा जा रहा हो तो. Then individual supply schedule. Supply एक चीज, there is one thing which is supply. What is? There should be willingness and there should be ability. These two keywords should be there. These two things should be there for being a stock into to convert any stock or any amount of any a part of a stock into supply. But what is supply schedule? When we're talking about the schedule, likewise there is similar term in the demand scale. There is demand schedule. Here it is
supply schedule. What is supply schedule? Means it is a list of quantities of price relationship of a commodity in a market at a specific point of time by an individual seller. So it is a relationship between the price and commodity which is going for sell. For example, it is hypothetically I'm going to describe a example. It is a schedule. सर सर बहुत धीरे आवाज आ रहा है। क्या हुआ? आवाज आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। अच्छा, बहुत धीरे आ रही है। अभी आवाज आ रही है? ये सर अब ठीक है, अब ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा एक काम करो, कोई मेरी ना रिकॉर्डिंग और भी कोई करते रहो। कौन है कि वो somebody going to record this also. I am also recording, but some of you also going to record. Okay. अब जैसे ये टेबल है, इस टेबल में एक कॉलम में है प्राइस और दूसरे कॉलम में क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। तो डिफरेंट प्राइस लेवल पे हम यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो शो किया। जैसे 300 का जब प्राइस है पर क्विंटल तो 30 क्विंटल अवेलेबल है। 325 का प्राइस हुआ तो 40 क्विंटल हो गया। 350 से 50 है, तो ये जो पूरा है इसको हम सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। ओके, शेड्यूल का क्या मतलब हुआ? जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाईज का जो रिलेशनशिप हम इसके थ्रू देख सकते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज सप्लाई शेड्यूल। ओके, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? नो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी आज। हेलो हेलो, यस सर अब ठीक है। आवाज क्लियर है अभी? सर अभी ठीक है, पर अब अच्छा ठीक है, चलो। सर जब आप जब डिस्कस करते हैं सर उस समय आवाज बहुत धीरे हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है कुछ। अच्छा ठीक है चलो। तो ये सप्लाई शेड्यूल समझ में आया? नो सर, एक बार और हाँ, रिपीट कर दीजिए। सप्लाई शेड्यूल में क्या है? अभी एग्जांपल दिख रहा है कि एक कॉलम में प्राइस है और दूसरे कॉलम में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड विच जो अवेलेबल हुआ सप्लाई के तौर पे, जो स्टॉक अवेलेबल। जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसने क्या किया कि जब 30 रुपए का उसको दाम मिल रहा था गेहूं का, तो उसने 30 क्विंटल मतलब जब उसको 300 रुपीज पर क्विंटल का रेट मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसने 30 क्विंटल के आसपास गेहूं का अवेलेबिलिटी बढ़ा दी वहां पर मार्केट में। नहीं, उसको 30 क्विंटल बेचना है। जब उसको 325 का प्राइस मिला तो उसने 40 क्विंटल अवेलेबल कराया। जब 350 का प्राइस मिला तो 50 क्विंटल अवेलेबल कराया। और जब 375 का प्राइस मिला, लाइकवाइज ये है ना, डिफरेंट प्राइस पे रिस्पेक्टिव जो क्वांटिटी अवेलेबल है सप्लाई के तौर पे मार्केट में। तो ये जो रिलेशनशिप दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे किस रेट से मतलब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है मार्केट में सप्लाई के तौर पे, तो इसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इसी तरह था डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या था कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे, समझ में आ रही है बात? डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना अमाउंट डिमांडेड होते जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही तो डिमांड बढ़ता जा रहा है, प्राइस ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वहां पर वो डिमांड शेड्यूल था, यहाँ पर ये सप्लाई शेड्यूल है। आई बात समझ में? कि जैसे जैसे प्राइस है, देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई सबको होता है ना, कि जब भाई पता चला सबके पास मान लो किसी पास 100 किलो गेहूं है, ठीक है, अभी आज 10 रुपए का रेट मिला, 10 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो किसी ने बोला कि बहुत जरूरी होगा तभी वो बेचेगा। भाई ठीक है, हम बहुत अभी घाटे में जाएंगे, नहीं बेचेंगे। तो पता चला कि 10 किलो अवेलेबल हुआ, ठीक है, लेकिन पता चला कि अभी कल 2 दिन में हुआ 30 रुपए का रेट चला गया, तो लोग कि नहीं ठीक है थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, तो एक काम करते हैं, जिसको थोड़ा सा और जरूरत होगा, मतलब थोड़ा कम जरूरत होगा पैसों का, लेकिन फिर वो सेल आउट करते, चलो भैया थोड़ा 2 पैसे में मुझे ज्यादा मिले तो उससे सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि गेहूं का रेट चला जाता है 50-60 रुपए चला जाता है, ठीक है, अब क्या होगा? हालांकि ऐसा होता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है, लेकिन मान लो अगर 50-60 चला जाए तो क्या होगा? लोगों का जितना गेहूं बचा होगा तो वो अपने कंजम्पशन को छोड़ करके क्या करेंगे? अपने स्टॉक में से अपने कंजम्पशन पूरा पूरा निकाल के, भाई बहुत प्रॉफिट मिल रहा, पूरा पूरा सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो क्वांटिटी अवेलेबल थी सेल के लिए वही सप्लाई है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो शेड्यूल बना डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो सप्लाई अवेलेबल हुई वहां पे, इसको सप्लाई शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? जी सर। ओके, ये सप्लाई का कर्व है।
सप्लाई का कर्व जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी, देखो जो सप्लाई का कर्व बनता है पहले भी आपने देखा था, ये इसमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मैं जो उसमें यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल है, जो पीपीटी अवेलेबल है वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ड्रॉ कर दीजिए ना सर, ड्रॉ का भी तो ऑप्शन है। ड्रॉ का ओके, ये जैसे कि जो y एक्सिस और x एक्सिस है, ठीक है। अब क्वांटिटी एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो x एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वांटिटी अवेलेबल को लिया है, ठीक है, जो सप्लाई है। और जो दूसरा है प्राइस है, वो जो प्राइस है तो प्राइस को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला यस दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है यस यहाँ पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी जो क्वांटिटी अवेलेबल थी वो यहाँ पर है, ठीक। और जब प्राइस यहाँ हो गई, तो हमारी सप्लाई यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब ये किसी भी ये ऐसे भी जा सकती, मतलब नॉर्मली ऐसे ही होता है कर कहीं भी, ठीक है। नॉर्मली जब हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं तो भाई अमूमन होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबको प्रॉफिट लेना होता है अपनी कमोडिटीज का, ठीक है। कोई भी किसान है यदि गेहूं बेचना चाहेगा तो उसको प्रॉफिट लेना है, तो वो अपने कंजम्पशन को छोड़ के कोशिश करेगी, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिला तो सारे के सारे गेहूं को निकाले। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो क्वांटिटी अवेलेबल है इन मार्केट वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, ये कर्व है यहाँ पे एक्चुअली, इस कर्व का ये अच्छा, एक तो ये कर्व बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इस कर्व के अंडर में जो दोनों एंड के बीच का ये जो एरिया है जो ब्लू कलर का है, ये क्या दिखाता है, ये इसका एरिया क्या दिखाता है किसी कर्व का, कोई बता सकता है? हेलो, व्हाट इट डिपिक्ट्स, ये जो एरिया क्या दिखाता है? एक्चुअली जब हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे कर्व अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, हम कुछ भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बहुत एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो इस एरिया के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सप्लाई, अभी क्या है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी मार्केट में, अगर हमको इसको प्रिडिक्ट करना हो तो हम इस कर्व के थ्रू कर सकते हैं। ये जो एरिया होता है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, ये जो एरियाज हैं डिफरेंट प्राइस लेवल पे, डिफरेंट क्वांटिटी लेवल का जो एरिया है यही बताता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना सप्लाई अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। अब मार्केट सप्लाई, एक तो थी सप्लाई की हमने डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी, यदि कोई सेलर है उसके पास एक स्टॉक है, ठीक, उसका वो कितना पार्ट विलिंग है कि हमको उसको सेल आउट करना है, और उसके पास एबिलिटी को उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। तो वो हम उसको सप्लाई काउंट कर रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, ठीक है। अब मार्केट सप्लाई क्या होती है? इट इज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी is brought into market for sale by the by the seller in a given market at a specific point of time, ठीक है। हेलो, यस सर, अभी पूरा दिखा होगा, ठीक है। It is the sum of the quantities of commodity that is brought into the market for sale by the sellers in a given market at a specific point of time. अब sum of quantity of commodity का क्या मतलब है? अभी हम एक इंडिविजुअल सेलर की बात कर रहे थे, ठीक है, एक इंडिविजुअल सेलर के लेवल पे हम सप्लाई की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं, when we talk about the market, there are a lot of sellers, lot of purchasers are there ना, मार्केट इज द, मार्केट में बहुत से सेलर्स होंगे, बहुत से, मान लो अगर कोई गेहूं बेचने बैठा तो बहुत से गेहूं बेचने वाले हो सकते हैं, ठीक है। जब हम मार्केट सप्लाई की बात करेंगे तो हम उन सभी सेलर्स की सप्लाई को सम अप करके देखेंगे, तब वो मार्केट सप्लाई की बोली जाएगी, ठीक है। इट इज द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज ब्रॉट इनटू मार्केट फॉर सेल by the sellers in a market at specific point of time. अब जैसे अगर 10 लोग हैं, किसी कोई 4 किलो लेके आ रहा है, कोई 5 किलो सप्लाई लेके आ रहा है, कोई 6 किलो, तो जब हम मार्केट सप्लाई की बात करें तो 10 का हम सम अप कर देंगे, तो वो जो सप्लाई होगी वो मार्केट सप्लाई होगी। लेकिन दोनों में एक चीज पॉइंट होगी
कि गिवन मार्केट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सप्लाई का काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे सप्लाई शेड्यूल बनाया था, हमने पहले बताया था ना, सप्लाई शेड्यूल क्या था, एक पर्टिकुलर सेलर की हम बात कर रहे थे कि वो डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितने अमाउंट अपनी जो कमोडिटी उसको सेल के लिए लेकर के आता है, अपने स्टॉक का कितना पार्ट जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट करता है डिफरेंट प्राइस लेवल पे। जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो वहां पर ये देखेंगे हम इन सभी का सम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइस लेवल पे उस मार्केट में किसी भी कमोडिटी का कितना अमाउंट जो है वो सप्लाई के तौर पे है या सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम यहाँ देख रहे हैं तो एक कॉलम है प्राइस का, दूसरा है इंडिविजुअल सेलर सप्लाईज है, तो यहाँ पर कोई मान लो ए है, कोई बी सेलर है, कोई सी सेलर है, ठीक है, ये डिफरेंट सेलर्स हैं। अब कोई मान लो जब 300 रुपीज पर क्विंटल का रेट था तो ए जो है वो उसके वो केवल 30 क्विंटल लेके आ रहा है, बी 35 लेके आ रहा है, सी 0 लेके आ रहा है। तो मार्केट में जो सप्लाई बोली जाएगी वो कितनी बोली जाएगी, इन तीनों का सम अप यानी 65 क्विंटल्स की बात की जाएगी, ओके। ये मार्केट सप्लाई का कर्व है, ये देख रहा हूँ मार्केट सप्लाई का कर्व है, मतलब वही है प्राइस और क्वांटिटी ये वेरी कर सकते हैं क्योंकि हर मार्केट का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कर्व का कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर सकता है, ओके। तो ये वेरी करेगा, बट जो एक साइड प्राइस का लेवल होगा, दूसरा क्वांटिटी सप्लाइड का लेवल होगा। हम जब मार्केट की बात करें तो मार्केट में हम होलसेल सप्लाई की बात करेंगे, और जब हम केवल सप्लाई या सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेलर की हम बात करेंगे। Then law of supply. The law signifies the positive relationship, that is, as the price of a commodity rises, its supply extend, and as the price falls, its supply contract. With other things remain the constant or same. जैसे वहां लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड में जो प्राइस और कमोडिटी के जो क्वांटिटी अवेलेबल है उसके बीच का जो रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? इनवर्स था दोनों के बीच में, इनवर्स था। यहाँ पर क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। Extension of supply means offering more quantity for sale at a higher price. सप्लाई के एक्सटेंशन देखो, एक तो होता है सप्लाई का बढ़ना और घटना, दूसरा होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मींस ऑफरिंग मोर क्वांटिटी फॉर सेल एट हायर प्राइस। जब प्राइस बढ़ रही है तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफर हो रही है सेल के लिए, वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफर हो रही है सेल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और जब प्राइस घट रही है तो वो जो अमाउंट है, जो अवेलेबिलिटी है सेल के लिए, जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है, वो घट जा रही है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो ये है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये उसका ग्राफ है कि जब P पे था तो क्वांटिटी Q है, और जब P1 हो जा रहा है तो क्वांटिटी Q1 हो जा रहा है। तो जो Q1 वाला है, जो A है और एक B है, ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और जब हम बोलेंगे कि प्राइस कम है तो वहां पर सप्लाई कम हो गई है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। Then increase and decrease in supply.
increase in supply implies more supply at same price and decrease in supply means less supply at same price. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई में. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? एक्सटेंशन ये कर रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो अमाउंट जो सप्लाई है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन और कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है कि जब प्राइस कम हो रही है तो अमाउंट भी जो सप्लाई है वो घट जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि सेम प्राइस पे जब ज्यादा अमाउंट आ जा रहा है सप्लाई के तौर पे, सेम प्राइस बढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी सप्लाई बढ़ गई है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. और डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं कि सेम प्राइस पे यदि सप्लाई घट जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन दस. यहाँ पर जो इंक्रीज और डिक्रीज है और जो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों में प्राइस के लेवल का फर्क है. जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमें प्राइस के बढ़ने और घटने पे डिपेंड करता है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज को हम सेम प्राइस लेवल पे नापते हैं. ये इसके ग्राफ है इंक्रीज और डिक्रीज का. देन फैक्टर कॉजिंग चेंज इन सप्लाई. अब सप्लाई में परिवर्तन कैसे होता है? ये जैसे कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन रिसोर्स प्राइसेस, reduction in the relative price of other product, market infrastructure, number of producers expectations about future price. अब change in technology जैसे अब सप्लाई बढ़ती कैसे है? अभी मार्केट में यदि कोई नई टेक्नोलॉजी है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको कोई लोग प्रेफर नहीं करेंगे. तो क्या होता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसको लोग सोचते हैं, उसके बारे में क्या लोग सोचते हैं कि भाई इसको जल्दी से सेल आउट कर दो क्योंकि ये आगे इसका मार्केट नहीं है. तो चूंकि मार्केट नहीं है इसका तो उनको अचानक से सप्लाई बढ़ जाती है ताकि सारा माल निकाल दिया जाए क्योंकि आगे फ्यूचर में इनको ग्राहक नहीं मिलेंगे, तो वहां पर इस सप्लाई में चेंज आ जाता है. फिर रिडक्शन इन रिसोर्स प्राइसेस है. रिडक्शन इन रिसोर्स प्राइसेस का जैसे क्या है कि जो रिसोर्स प्राइस है यदि बढ़ जा रही है घट जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग वहां प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्टेड होता है, और प्रोडक्शन बढ़े या घटेगा उसी के अकॉर्डिंग तो सप्लाई बढ़ेगी घटेगी. यदि हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देन रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइसेस फॉर अदर प्रोडक्ट. अब जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जैसे एक गाय के लिए दूध का, यदि मान लो अगर दूध का रेट 1 रुपए पर केजी आ जाए तो कोई गाय रखना पसंद नहीं करेगा, मतलब व्यावसायिक पर्पस कोई डेयरी नहीं करेगा, डेयरी हस्बेंड्री कोई नहीं करेगा क्योंकि वो प्रॉफिट करना चाहते हैं. अब 1 रुपए में उनको प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो गाय को नहीं खरीदेंगे. तो कहीं से वो गाय की सप्लाई के ऊपर फर्क करेगा, क्योंकि गाय की डिमांड नहीं होगी तो उसकी सप्लाई घट जाएगी. इसी तरह से वाइस वर्सा होता है. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि मार्केट में स्टॉकिंग के लिए जगह ही ना हो, लोगों के पास अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, उसके ग्रेडेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, उसको क्वांटिफिकेशन की व्यवस्था नहीं होगी, तो ये चीजें उसके सप्लाई पे फर्क करती हैं. फिर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, कम प्रोड्यूसर्स होंगे तो सप्लाई वो अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं. देन प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस. यदि प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि भविष्य में किसी चीज का प्राइस कम होने वाला है तो उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, भाई अभी उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा. और यदि उनको ये लगता है कि भविष्य में किसी चीज का प्राइस बढ़ सकता है तो सप्लाई रोक देते हैं. जैसे प्याज के केस में बहुत से लोग प्याज की स्टॉकिंग कर देते हैं ताकि उनको लगता है फ्यूचर में जब बढ़ जाएगा तब हम बढ़ाएंगे उसकी सप्लाई वहां मार्केट में ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा. अब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, इट इज जस्ट लाइकवाइज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस ऑफ सप्लाई टू द चेंज इन प्राइस. इसका फॉर्मूला यही है, इट इज द परसेंट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड एंड परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड सप्लाइड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, suppose the price of an egg rise from 1 to 2 rupees and as a result the supply increases from 10 to 30. अब जो प्राइस में चेंज हुआ वो 1 रुपए का हुआ है, 1 रुपीज का चेंज है, इट मीन कितना परसेंट चेंज है? ये 1 रुपए से 2 रुपए हुआ है तो अप्रोक्सीमेट ये 100% का चेंज है. और जो सप्लाई है वहां पर 10 से 30 हो गया, मीन्स कितना परसेंट ये वेरी किया हुआ है? अगर जब इसके इलास्टिसिटी निकालोगे तो ये 2 आएगा. जब परसेंटेज
परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई डिवाइडेड परसेंट चेंज इन द प्राइस करोगे तो ये 2 आएगा। मींस 1% इंक्रीज इन प्राइस देयर इज 2% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब 1% प्राइस के चेंज होने से 2% क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जा रहा है यहाँ पर। इट इज इलास्टिक। अब जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कई डिग्रीज थी, उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की भी 5 डिग्री है। यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। जैसे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई है और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये होता है कि थोड़े से प्राइस के वेरिएशन से when the supply of commodity increase to infinite quantity or unlimited quantity even though there is invisible rise or minute rise in the price, प्राइस में थोड़े से फ्लक्चुएशन से जब सप्लाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी, जो ई की वैल्यू है वो क्या होगी, वो इनफाइनाइट होती है। ये इसका कर्व है। मतलब सेम प्राइस पे या प्राइस में छोटे से फर्क से, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया है यहाँ, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। देन परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, it means that the quantity supplied is not responsive to the change in price. Here the elasticity of supply in this case is 0. Means see here, प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, इसके बावजूद जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने के बाद भी, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक हो रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, here the supply is referred as relatively elastic when the percentage change in the quantity supplied is more than the corresponding percentage change in the price. Means different price level पे different क्वांटिटी का लेवल सप्लाई के तौर पे आ रहा है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी के सप्लाई में हुआ है वो रिस्पेक्टिव जो परसेंटेज चेंज है प्राइस से उससे ज्यादा है। इट इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जब P था, यहाँ P और P1 का जो डिफरेंस है और Q और Q1 का डिफरेंस, तो Q और Q1 का डिफरेंस रिस्पेक्टिव रूप से P और P1 के डिफरेंस से ज्यादा है। परसेंटेज चेंज जो है Q और Q1 के बीच का है वो ज्यादा है रिस्पेक्टिव टू P से P1 के बीच का। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। द नेक्स्ट इज रिलेटिवली हाँ सर रिलेटिवली इलास्टिक वाला फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, ये ग्राफ दिख रहा है, यस सर। एक साइड प्राइस है और दूसरे साइड क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पर चेंज देखो, जो P और P1 के बीच का जो डिफरेंस है और Q और Q1 के बीच का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस किसका ज्यादा दिख रहा है? Q और Q1 का जो डिफरेंस है, हमने जो इलास्टिक का डेफिनेशन क्या पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, तो यहाँ पर जो प्राइस, हाँ नीचे प्राइस का चेंज है, ऊपर क्वांटिटी का चेंज है, सप्लाई का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ जो Q और Q1 का जो डिफरेंस है रिस्पेक्टिव रूप से P और P1 के बीच के डिफरेंस से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। सर सप्लाई यस सर, इलास्टिक तो है लेकिन रिलेटिवली है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब कि प्रोपोर्शनेट नहीं है। अगर मान लो प्रोपोर्शनेट हो जाए तो जितना प्रोपोर्शन प्राइस में चेंज हो रहा है उतने ही प्रोपोर्शन से यदि क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है? उसको यूनिटरी बोलेंगे। एक यूनिटरी का ऑप्शन मैंने बताया था, पढ़ा है, अभी इसमें आगे मिलेगा, ठीक है। अब ये समझो कि ये रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है। मींस यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव से जो क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज चेंज है वो प्राइस के जो परसेंटेज चेंज है उससे ज्यादा है, ठीक है। यस सर। रिलेटिवली अब है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई।
देखो इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब सप्लाई में परिवर्तन नहीं हुआ, सप्लाई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, इसीलिए इसको इनइलास्टिक बोला जा रहा है यहाँ पे। सप्लाई इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक when the percentage change in the quantity supplied is less than the corresponding percentage change in the price। अभी इसके पहले वाले में क्या था कि वहां पर क्वांटिटी चेंज का जो परसेंट चेंज था वो ज्यादा हो रहा था सप्लाई का, किससे ज्यादा हो रहा था, प्राइस के परसेंटेज चेंज से। अभी क्या है यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में थोड़ा सा वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मतलब देखो जो Q और Q1 का जो डिफरेंस है रेस्पेक्टिव रूप से P और P1 के डिफरेंस से कम है, इसलिए ये रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई बोली जाएगी। ठीक है, हेलो, नहीं सर। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये कर्व दिख रहा है, हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ Q और Q1 के बीच का डिफरेंस देखो और P और P1 के डिफरेंस का, ये बताओ डिफरेंस कौन सा ज्यादा दिख रहा है? P1 और P का। P1। अब यहाँ पर ये देखो, इसको ऐसे समझो कि यहाँ प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, आपने किसी भी कॉमोडिटी का जो रेट है वो 2 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए कर दिया, 200 से होना फर्क होना बहुत ज्यादा 100 टाइम बढ़ गया ना। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्वांटिटी अवेलेबल सप्लाई के लिए की जा रही थी, पता चले जब 2 रुपए था तो उसका 5 किलो अवेलेबल था सप्लाई के लिए, जब 200 भी कर दिया तो केवल 5 रुपए से 7 रुपए, सॉरी 5 किलो से 7 किलो ही केवल अवेलेबल हुआ उसका। इतना ज्यादा प्राइस वेरिएशन होने के बाद भी उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, बहुत थोड़ी सी सप्लाई में फर्क आया है। आ रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक सर है। तो रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या अंतर हुआ सर? तो फिर ऐसे देखो इलास्टिक, अब देखो पहले ये समझो इलास्टिक क्यों बोलते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक यही तो डिफरेंस है इसमें, पर रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई और रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। जब सप्लाई रिस्पांस अच्छा कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम इलास्टिक बोलेंगे। जब सप्लाई रिस्पांस अच्छा नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम इनइलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। जैसे इस वाले में इनइलास्टिक सप्लाई इसलिए बोले कि तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन फिर भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन जब हम पीछे के स्लाइड में देखें रिलेटिवली इलास्टिक वाले में, तो प्राइस के थोड़े से वेरिएशन से जो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई वहां पे, मतलब सप्लाई जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस कर रही है, बहुत ज्यादा रिस्पांस कर रही है, इसलिए इसको इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। और जब यहाँ पे जो सप्लाई है अच्छे से रिस्पांस नहीं कर रही है, बहुत थोड़ा सा रिस्पांस कर रही है, तो इसको हम इनइलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ना, उसके शेप में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इलास्टिसिटी तो यही होती है। ठीक है, तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है जब सप्लाई बहुत ज्यादा रिस्पांस कर रहा हो, और इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा रिस्पांस न करी हो, क्वांटिटी जो सप्लाई बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं करे। देखो प्राइस में यहाँ बहुत ज्यादा परिवर्तन होने के बाद भी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। आई बात समझ में? यस सर। दोनों में क्लियर है ना? अभी डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब जो मैंने पूछा था यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या है? when percentage change in quantity supplied equals the percentage change in the price, means अब देखो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स पे क्वांटिटी सप्लाइड अवेलेबल है और वाई पे क्या अवेलेबल है, प्राइस का लेवल है। ठीक है, अब दोनों का प्रोपोर्शन जो परसेंटेज चेंज है दोनों का, हमने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, प्राइस। हाँ, अब यदि जो दोनों का परिवर्तन है, जो परसेंटेज चेंज है, यदि दोनों का सेम हो, यदि क्वांटिटी सप्लाइड में 10% का चेंज हो रहा हो, यदि प्राइस में हम 10% का चेंज कर रहे हैं, प्राइस में यदि 11% का चेंज कर रहे हैं और क्वांटिटी में भी 11% का चेंज हो रहा हो, प्राइस में हमने 100% का चेंज किया तो सप्लाई में भी 100% का चेंज आ गया। ठीक है, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही सेम वैल्यू होंगे, तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे। मींस दोनों में प्रोपोर्शनल चेंज है वो सेम हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। आई बात समझ में? समझ में आई? यस
दोनों में प्रोपोर्शनल चेंज दोनों में सेम हो। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों प्रोपोर्शनल चेंज सेम हो रहा है। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मार्केट, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टार्टिंग एंड वाइंडिंग अप द बिजनेस। ओके, अब ये जो फैक्टर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स जो सप्लाई की इलास्टिसिटी को कैसे मतलब चेंज करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनपुट ये समझ में इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? देखो, जब सप्लाई, जो फैक्टर्स सप्लाई को मतलब हिंडर करेंगे या उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी डिस्टर्ब करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि इनपुट्स, मान लो कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है वो 10 इनपुट्स से मिलके बनता है, लेकिन उसमें से कोई एक इनपुट ऐसा है, अब 10 के 10 में से जो 9 इनपुट है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 की मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो केवल 5 की मात्रा में अवेलेबल है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम केवल 5 प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो उसमें वो जो लिमिटिंग प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी ही उसकी सप्लाई को एवं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। देन लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। लेंथ ऑफ टाइम पीरियड का क्या मतलब है? हम कितने पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड में हम इसको मेजर कर रहे हैं किसी सप्लाई को, ठीक है। ये हर मार्केट के हिसाब से चेंज करेगा, क्योंकि बहुत से लोग स्टोरेज करते हैं, किसी डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उनका स्टोरेज करते हैं, ताकि जब उनको प्रॉफिट मिले तो वो उसकी सप्लाई बढ़ा करके प्रॉफिट कमा सकें। तो वहां पर भी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इस पे डिपेंड करेगी। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमारा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतना ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ये इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे एक डेयरी है, जो नॉर्मल डेयरी होती है वो केवल जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूध बेचता है, लेकिन जो बड़ी डेयरीज होती हैं वो दूध, पनीर, छेना, समथिंग जितने भी प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोसेस करके बेचती हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में बेचती हैं। ठीक है, तो वो ये जितना ही डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्शन एक्टिविटी का, उतना ही ये इन्फ्लुएंस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मार्केट। अब यदि मार्केट एक ही है तो मोनोपोली जैसी है कि नहीं, हमें जब भी किसी को सेल करना है तो वो उसी मार्केट में ही जाके सेल आउट कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन यदि कोई उसके पास अल्टरनेटिव मार्केट है तो भी उसकी सप्लाई किसी पर्टिकुलर मार्केट में इस चीज पर डिपेंड करती है कि क्या उस कमोडिटी को किसी दूसरे मार्केट में भी बेचा जा सकता है। यदि ऐसा ऑप्शन होगा तो उसकी सप्लाई निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगी या इन्फ्लुएंस होगी इस चीज से। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टार्टिंग एंड वाइंडिंग अप द बिजनेस। किसी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको वाइंड अप करने में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितनी आराम से हम किसी बिजनेस को सम अप कर सकते हैं। एक छोटा बिजनेस है, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड का बिजनेस है, तो जितना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगा उतना ही वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है।